morning, kids. Welcome to the, we can say, online classes of your economics. Now, from today onwards, we'll start the seventh lesson of economics, which is unemployment in India. Now, guys, before moving ahead, let's discuss the, we can say, meaning, या we can say the definition of unemployment. कि exactly what is unemployment. चलिए आज से हम लोग सेवेंथ लेसन स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का, जिसका मतलब हो जाता है अनएम्प्लॉयमेंट, या आई एम सॉरी, जिस लेसन का नाम है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, कि इंडिया में बहुत सारे लोग पैसा अर्न नहीं कर पाते. नो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द सेम, विल डिस्कस द सेम इन दिस पर्टिकुलर लेसन. इस लेसन में हम वही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. सो first, let's have the meaning and definition of unemployment. Exactly what you mean by unemployment. Now, guys, unemployment is a situation where we can say the person willing to work, but they are not getting jobs. Okay, guys, now unemployment is a situation where a person, we can say in the age group, as I told you, the three age groups 0 to 18, yeah, we can say child group, working group, and old age group. Okay, according to that, guys, now we are talking about working group. Now, person of working group and a working age group, the person is willing to work, but still the person is not getting proper job, yeah, the person is not getting any kind of job. That's why the person is unable to fulfill the basic needs of their families, such as what are the basic needs? Food, clothes, and shelter. As the person is not earning something, that's why the person is unable to complete, yeah, unable to fulfill the basic needs of their family. And this is, we can say, this is the main cause of rapidly increased in unemployment in India. अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों अनएम्प्लॉयमेंट की मीनिंग की या उसके डेफिनेशन की, तो इसमें हो जाता है कि एक ऐसा बंदा जो वर्किंग ग्रुप से बिलोंग करता है. वर्किंग ग्रुप क्या होता है, मैंने जैसे आपको बताया था, जैसे चाइल्ड ग्रुप और ओल्ड एज ग्रुप पूरी तरह से डिपेंड होते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर. उस ग्रुप को हमने नाम दिया है वर्किंग ग्रुप. द वर्किंग ग्रुप एक ऐसा ग्रुप रहेगा जो पैसा अर्न करेगा, या वी कैन से अपनी फैमिली की पूरी ज़रूरतों को पूरा करता चला जाएगा. Now what is working group, guys? Now the definition of unemployment is a person is willing to work. एक ऐसा बंदा जो कि वर्किंग ग्रुप को बिलोंग करता है और वो बहुत सारा काम करना चाहता है या उसकी इच्छा है काम करने की, बट उस बंदे को काम नहीं मिल पाता है. या तो हम बोलेंगे प्रॉपर काम नहीं मिल पाता है, या हम बोलेंगे उसे काम ही नहीं मिल पाता है. इसलिए वो बंदा क्या है, अगर उस बंदे के पास में जॉब ही नहीं है ना, एज द पर्सन इज नॉट अर्निंग समथिंग, देन द पर्सन इज अनएबल टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ देयर फैमिली. अगर उस बंदे के पास में काम ही नहीं है तो वो घर की किसी भी प्रकार की ज़रूरत को, या वी कैन सी किसी भी प्रकार की नीड को वो बंदा फुलफिल नहीं कर पाता है. ये हो जाता है इन शॉर्ट मेरा अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग. आइए आगे देखते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ गाइस, now as per economics, we can say the unemployment has been studied with the respect of, the first one is nature, working age group, okay, the first one is nature, another one is working age group, the third one is demand for labor and supply, and last but not the least is prevailing wage rate. Okay, guys, now let's start with it one by one. Now, as I told you, that unemployment is been studied with respect to these four factors, yeah, these 4 points.
Now let's discuss the same one by one. The first one is nature. Nature means what? कि just because of nature of that particular work, yeah, we can say that particular category of work, just because of that n number of people are means they are willing to work, but just because of that nature of that particular work, they are unable to work. For example, a lady is we can say able to work, but she is not work, I'm sorry, she'll not work in night hours, yeah, in night timing. Why? Because it's not safe for her. चलिए हिंदी में चेकआउट करते हैं. अगर मैं बात करती हूँ नेचर की, किसी पर्टिकुलर वर्क का नेचर क्या रहेगा, उसके फीचर्स क्या रहेंगे, कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर लेडी काम करना चाहती है, बट द थिंग इज दैट उसके काम का एटमॉस्फियर या वी कैन से द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क शुड बी वी कैन से वेरी गुड या बहुत अच्छा होना चाहिए. और एक पर्टिकुलर लड़की की काम करने की बहुत इच्छा है, वो काम करना भी चाहती है, बट द थिंग इज दैट कि अगर नाइट आवर्स में उसके लिए कोई जॉब अवेलेबल हो, है ना, उसने दिन में काम करना है और नाइट आवर्स में कोई जॉब अवेलेबल हो, तो वो पर्टिकुलर बंदी उस पर्टिकुलर सिचुएशन में काम नहीं कर पाएगी. इस टाइप की चीज़ें या इस प्रकार की चीज़ें आ जाती है हमारी नेचर में. आइए सेकेंड वन काउंट करते हैं, वर्किंग एज ग्रुप. नाउ वर्किंग एज ग्रुप इज वी कैन से इज द ग्रुप कि जिसके ऊपर टू ग्रुप्स आर डिपेंडिंग अपॉन इट, या वी कैन से two groups are depends upon it. Now as I told you, the whole economy, the whole country has been divided into three age groups. The first one is child group, another one is working group, and the last one is old age group. Now if we'll take example of child group and old age group, so these two groups are not working, then who's working? Only working group will work, and he is having a responsibility, yeah, we can say he is the responsible person in that particular family who has to take care of child group and old age group. That's why if we take example of working age group, guys, so the responsibilities of a whole family is we can say done by that working age group. As the person is willing to work but the person is not getting proper kind of jobs, then too the person is unable to work in that particular situation. अगर हम लोग बात करते हैं वर्किंग एज ग्रुप की बच्चों, वर्किंग एज ग्रुप एक ऐसा पर्टिकुलर ग्रुप होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि पूरी कंट्री को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, चाइल्ड ग्रुप, वर्किंग ग्रुप और लास्ट वाला रहेगा हमारा ओल्ड एज ग्रुप. अगर हम लोग बात करते हैं चाइल्ड और ओल्ड एज ग्रुप की, ये दोनों ग्रुप यूजुअली काम नहीं करते या ये लोग काम करना भी नहीं चाहते. फिर काम करेगा कौन? तो काम करेगा हमारा पर्टिकुलर वर्किंग ग्रुप. ये दो ग्रुप कुछ काम नहीं कर सकते हैं. अब अगर वर्किंग ग्रुप कोई एक पर्टिकुलर काम कर रहा है तो यूँ समझ लीजिए कि सारी फैमिलीज़ की जिम्मेदारियाँ, है ना, वॉट एवर थिंग्स आर देयर, सारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन वर्किंग ग्रुप के बंदों पे आ जाती है. नाउ इन वर्किंग ग्रुप के लोगों के लिए क्या होता है कि ये लोग काम तो करना चाहते हैं, बट जिस प्रकार का काम ये करना चाहते हैं उस प्रकार से जॉब इन्हें नहीं मिल पाती है. इसीलिए ये सारे लोग फिर क्या करते हैं कि मुझे ये नहीं, मुझे इससे अच्छी जॉब चाहिए या कोई और चाहिए, या इन सारे कारणों की वजह से इन लोगों को जॉब नहीं मिल पाती है या काम नहीं मिल पाता है. आइए नेक्स्ट वाला चेकआउट करते हैं, डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई. आइए देखते हैं अब डिमांड फॉर लेबर या डिमांड फॉर सप्लाई क्या होता है. नाउ यूजुअली क्या होता है बच्चों कि कुछ पर्टिकुलर प्रेमाइसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल this is a particular factory, okay, this is nearby we can say some particular village या पर्टिकुलर प्लेस. ठीक है, एक ये छोटा सा गांव है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर फैक्ट्री है. इस फैक्ट्री में सिर्फ 100 लोगों की ज़रूरत है. कितने? इस फैक्ट्री में हार्डली 100 पीपल्स कैन वर्क एट अ टाइम. बट if we'll take example of the particular village, so in the particular village, guys, 1000 people are unemployed. Again I'm repeating the same. If we'll take example of particular village, yeah, XYZ village, over here 1000 people are unemployed and one factory is done near to that particular village, and over there hardly 100 people are needed, या 100 people की ज़रूरत है. एक गांव में 100,000 लोग हैं जिनको काम नहीं है, वहीं पर करीब में एक फैक्ट्री है जहाँ पे 100 लोगों की ज़रूरत है. नाउ लेट्स सी गाइस द सिचुएशन, यहाँ पे 1000 लोग हैं, यहाँ पे 100 लोग हैं.
Now, if we'll take example of this particular thing, over here we are discussing demand for labor and supply. यहाँ पे अब पर्टिकुलर फैक्ट्री में डिमांड है सिर्फ 100 लोगों की, जबकि सप्लाई की अगर मैं बात करूँ या कितने लोगों को जॉब की ज़रूरत है तो वो है 1000 लोग। अब इसमें यहाँ पे क्या होगा कि इस पर्टिकुलर कंपनी के ओनर के लिए, नाउ कंपनी का जो ओनर रहेगा इसे पता है कि जॉब सिर्फ मेरे ही पास है, वो भी सिर्फ 100 सीट्स अवेलेबल है या 100 सीट्स वैकेंट है। अब अगर हम लोग बात करते हैं इन पर्टिकुलर सिचुएशन की, यहाँ पे 1000 लोग हैं जिनको काम नहीं है, सिर्फ 100 की ज़रूरत है। अब यहाँ पे ये जो कंपनी का ओनर रहेगा ये अगर हमें लो वेजेस देता है, लो वेजेस मतलब कम तनख्वाह, कम सैलरीज, कम मजदूरी देता है, तो भी ये जो 100 लोग हैं इन लोगों को अगर वो कम तनख्वाह भी देता है तो इन्हें उतनी ही सैलरी में काम करना होगा इफ़ दे डोंट वांट टू लूज देयर जॉब, अगर वो अपनी जॉब को गंवाना या खोना नहीं चाहते हो तो इसलिए वो लोग कम वेजेस पे काम करेंगे। प्लस अगर मैं बात कर लेती हूँ वर्किंग आवर्स की, वर्किंग आवर्स भी अगर मैं ले लूँ कि यूजुअली 8 से 10 घंटा काम करना होता है और वीकेंड से उतना ही टाइम मोर देन इनफ होता है। पर अगर मैं बात करती हूँ इस पर्टिकुलर कंपनी के ओनर की, उसे पता है कि मेरे पास में सिर्फ 100 लोगों की सीट है लेकिन बहुत सारे लोगों को जॉब की ज़रूरत है। अगर मैं वेज रेट या वीकेंड से वर्किंग आवर्स बना के 8 से 10 की बदले 14 आवर्स भी कर दूँ या वीकेंड से 12 आवर्स भी कर दूँ, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 100 काम नहीं करना चाहते हैं ना, मूव, हम लोग किसी 100 को हायर करेंगे। फिर ये 100 भी काम नहीं करना चाहते हैं, हम किसी और को हायर करेंगे। और जिस किसी को वॉट एवर रूल्स एंड रेगुलेशन द ओनर बता रहा है कि आपने इतना ही वेज रेट है, इतना ही इसमें काम करना है, उस पर अगर इन लोगों को वीकेंड से एडजस्ट हो पाता है या ओके हो पाता है तभी वो लोग काम करेंगे, अदरवाइज उस कंपनी के ओनर के पास में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। क्लियर? आइए नेक्स्ट वाला चेकआउट करते हैं गाइस कि प्रिवेलिंग वेज रेट। नाउ एज आई टोल्ड यू द प्रिवेलिंग वेज रेट मीन्स व्हाट। चलिए एक और देख लेते हैं। Okay, again take an example of a company. This is company. Now hardly 100 people are needed. Again hardly 100 people are needed. Or if I take the example of population, तो hardly 110 population is there. आइए दूसरी कंपनी की बात करते हैं। एक कंपनी में सिर्फ 100 लोग हैं और अगर हम लोग उस पर्टिकुलर विलेज की या उस पर्टिकुलर प्लेस की बात करें, वहां पे हार्डली 110 लोग रहते हैं या करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ कंपनी के ओनर की, ओके बच्चों, यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ कंपनी के ओनर की, उसके सामने और कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो बंदा समझता है कि मुझे 100 लोगों की ज़रूरत है और हार्डली 110 लोग वी कैन से पर्टिकुलर प्लेस पे अवेलेबल है। मतलब क्या हो जाएगा बच्चों कि इस कंपनी के ओनर के लिए हो जाएगा कि अगर मैं जो भी वेज रेट है वो प्रॉपर नहीं दे पाता हूँ तो मेरे पास से धीरे धीरे करके ये सारे वर्कर्स निकलते चले जाएंगे, जिसकी वजह से कुछ दिनों में मे बी मुझे मेरी पर्टिकुलर कंपनी को लॉक करना पड़ सकता है, बंद करना पड़ सकता है ऑल। और अगर हम लोग बात करते हैं हमारे वर्किंग आवर्स की, तो वर्किंग आवर्स भी ये बंदा कैसे रखेगा, सूटेबल, फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू ये पर्टिकुलर वर्कर्स के। और अगर वो बंदा नहीं रख पाता है, प्रिवेलिंग वेज रेट क्या होता है कि पर्टिकुलर काम के हिसाब से उसको वेजेस प्रोवाइड करना, तो इस कंडीशन में वो पर्टिकुलर चीज हो जाती है। चलिए अगला चेक करते हैं। नाउ लेट्स टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। Okay guys, now let's start with, we can see the types of unemployment. Now unemployment is again divided into two broad categories. First one is rural, and another one is urban employment. Again I'm repeating, unemployment is divided into two broad categories. Out of it, first one is rural and unemployment and another one is urban unemployment. I'm sorry. Now, what is rural unemployment, guys? Rural unemployment is
कि जब किसी पर्टिकुलर विलेज, एज आई टोल्ड यू, रूरल मीन विलेजेस एंड अर्बन मीन्स सिटीज. Just for your clarification, over here I'm writing the same, villages and over here cities. चलिए, अब जो वी कैन से अनएम्प्लॉयमेंट मैंने बताई थी, बेरोजगारी या जिन लोगों को कामकाज नहीं होता है, उस चीज़ को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, दो सेक्शंस में, जिसमें पहला बन जाता है बच्चों रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे हम लोग विलेज अनएम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं, गांव में होने वाली अनएम्प्लॉयमेंट. सेकेंड वन इज अर्बन या वी कैन से सिटीज की अनएम्प्लॉयमेंट. आइए देखते हैं अभी कि इस पर्टिकुलर चीज में क्या होना चाहिए. चलिए, गांव में किस प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसे आज हम लोग चेकआउट कर लेते हैं. द फर्स्ट वन इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, द फर्स्ट वन इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. दूसरी अगर मैं बात करती हूँ, इसे हम बोल देंगे डिस्ग्रेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, अगर अर्बन का हम लोग थोड़ी देर में सीख लेते हैं. आइए बच्चों सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट है बच्चों, जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल ले कि विलेजेस की अगर मैं बात करती हूँ, तो विलेजेस में मोस्ट ऑफ फार्म्स होते हैं. फार्म्स मतलब खेती होती है. अब वो पर्टिकुलर खेती डिपेंड करती है नेचर के ऊपर. बारिश चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, क्लाइमेट परफेक्ट चाहिए एंड एवरीथिंग. नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट so many farmers are farming on seasonal basis. जैसे मैंने बताया कि जितनी भी फार्मिंग होती है, खेती होती है, वो किस पर डिपेंड होती है बच्चों? नेचर पे. ठीक है, नेचर पे अगर वो पर्टिकुलर चीज डिपेंड होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे फार्मर्स के पास बहुत छोटे छोटे पीसेस ऑफ लैंड अवेलेबल है, जिसकी वजह से वो एक फार्म पे एट अ टाइम बहुत सारे क्रॉप नहीं उगा सकते या बहुत सारी सब्जियां ग्रो नहीं कर सकते. इसलिए वो क्या करते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज को डिवाइड करते हैं. जितने भी सीजन आते हैं उन सीजन वाइज इसे डिवाइड करके कभी वो लोग यहाँ पे मैंगो ग्रो कर देंगे, कभी वो यहाँ पे कुछ और लगा लेंगे, कभी कुछ और, कभी कुछ और. मीन्स व्हाट, सीजनली वो लोग काम करते हैं. मतलब अगर एक बंदे का मैंगो का हो पर्टिकुलर जो भी है, या वी कैन से बनाना हो, आप बोलते हो शुगर केन यानी गन्ना हो, जो भी चीजें हो, वो सारी चीजें वो लोग क्या करते हैं बच्चों, कंटिन्यूएशन में वो चीजें नहीं हो पाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनके पास में इतनी सारी लैंड नहीं है. इसे ही हम लोग बोलेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. अब क्या होगा कि कुछ लोग जो सिर्फ मैंगो ग्रो करते हैं, उन लोगों के लिए क्या होगा, जब मैंगो का सीजन चला जाता है, हार्डली 4 मंथ्स या 3 मंथ्स मैंगो का सीजन होता है, उस सीजन के जाने के बाद उन लोगों के पास और कोई काम ही नहीं होता है. क्लियर? इसे हम लोग बोल देंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. आइए देखते हैं अब कि व्हाट इज डिस्ग्रेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट गाइस. चलिए, अब मैं बात करती हूँ एक पर्टिकुलर फार्म की. चलिए आइए एक्सप्लेन कर लेते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस विद व्हाट इज डिस्ग्रेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ दिस इज अ टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट वेयर वी कैन से extra peoples, yeah, more peoples are working in it. How? Let's have a look toward it. For example guys, this is farm A and this is farm B. चलिए, फार्म ए और फार्म बी दोनों की साइज एक ही है. ओके, नाउ चलिए इसे भी हम लोग फार्म ए ही अज्यूम करते हैं थोड़ी देर के लिए. चलिए, फार्म ए की अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, खेती जिसे हम बोलेंगे, ये पर्टिकुलर फार्म की साइज के हिसाब से यहाँ पे हार्डली 5 लोग अगर काम करते हैं, ठीक है, इस फार्म में हार्डली 5 लोग अगर काम करते हैं तो बहुत अच्छे से वो काम हो जाता है या ओके हो जाता है. अब इसी पर्टिकुलर फार्म में क्योंकि घर में बहुत सारी पॉपुलेशन है, इस पर्टिकुलर फार्म में 15 लोग काम कर रहे हैं. चलिए, अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ 5 लोग भी काम करते हैं, तो यहाँ से 10 क्विंटल्स ऑफ राइस मिल जाते हैं. जितनी फार्म की साइज है, फार्म की साइज के हिसाब से जितने भी लोग यहाँ पे काम करते हैं, जैसे कि मैंने बताया 5 लोग की जरूरत है, 5 लोग अगर काम करेंगे मुझे 10 क्विंटल्स ऑफ राइस या चावल मिल जाते हैं. अगेन दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, फार्म की साइज सेम है पर वहाँ पे 15 लोग काम कर रहे हैं, जरूरत सिर्फ 5 की है, काम कर रहे हैं वी कैन से 15 लोग. अगेन यहाँ पे भी हमारा जो पर्टिकुलर है 10 क्विंटल्स ऑफ राइस मीन्स
5 लोग काम करें या 15 लोग काम करें, आपको जो पर्टिकुलर रिटर्न मिलने वाला है, आउटपुट मिलने वाला है, वो 10 क्विंटल्स ही है। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ कि एक फार्म में 5 लोग और दूसरे फार्म में 15, तो ये जो 10 लोग हैं ये बेकार में काम कर रहे हैं, या वी कैन से इनके काम की कोई ज़रूरत ही नहीं है, एक्स्ट्रा ये लोग काम कर रहे हैं। इस टाइप की एम्प्लॉयमेंट को हम लोग बोल देंगे disguised unemployment. Okay, that's it for today. In next session we'll talk about urban unemployment या cities वाली unemployment. Thank you.